Okay, very good morning, students. Welcome back. So, before starting with the chapter, continuing with the chapter of lesson 12, let us do the discussion of test that was posted yesterday. Shall we start with? Can I start? Are you all ready? Chaliye, first question is, name the sources of fresh water. Fresh water के sources बताइएगा. Any of you? Sources of fresh water. 2 marks का है. So I expect at least 4 sources of fresh water. 4 sources fresh water के बताएंगे आप. किसी ने टेस्ट नहीं किया? Nobody has raised the hand. Why so? Niharika, your class is over now. Yes, Bhavya. Tube wells and hand pumps. 4 पूछी है मैंने. Bhavya, I asked 4. Yuvraj. मैम वेल्स, ट्यूब वेल्स, आरओ और फिल्टर. क्या है? No. RO filter गलत. They are not the source of fresh water. Okay. And wells. और सुहाना. मैम रेन वाटर, हाँ जी. अंडरग्राउंड वाटर, आइस कैप्स. No, wrong. सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर पूछे हैं बेटा मैंने आपसे. सिंपल सा क्वेश्चन है. इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये भी नहीं आता हमें. ग्राउंड वाटर, ठीक है, जिसमें आ जाएंगे आपके हैंड पंप्स, ट्यूबवेल्स, वेल्स, लेक्स, रिवर्स. ठीक है, गॉट इट. चलिए, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट द रीजंस फॉर लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल इन सिटीज. सिटीज में वाटर टेबल क्यों लोअर हो रहा है? List the reasons for lowering of water table in cities. Who will answer? Yes, Kanav. हाँ जी बेटा. मैम इंक्रीज इन पॉपुलेशन. मैम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन. बेटा देखो, सिर्फ दो वर्ड नहीं लिखने, इनको एक्सप्लेन करो. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कैसे अफेक्ट करती है बताइए. Ma'am, as large number of people, when there is an increase of population, there is also more demand of water. So which increases the groundwater. Use of groundwater and the water table goes down. ठीक है, goes down. हाँ. Number 2. Ma'am, industries, ma'am, like more water is needed by industries for their work, which causes depletion of groundwater or water table. ठीक है. Ma'am, farmers they also need more water for grow crops. As the population increases, there is more demand of food. To meet that demand, farmers, they need to grow more crops, right? And if more crops are grown, obviously the need of water rises, which will further lower down the water table. Got it? आपको पूरा एक्सप्लेन करना है तीनों पॉइंट्स को. हो गया? Then coming to next, third question. Given below are 3 states of water in a beaker.
These states are interconvertible. Name the process forward and backforth labeled A, B, C, D, which cause these conversions. देखिए मैं बीकर नहीं बनाऊंगी, ऐसे 1 2 3 कर देती हूँ, 2 and 3. अब उसने कहा है यहां से यहां A, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है. नाउ बताइए यहां से यहां कौन सा स्टेप होगा, कौन सा फिनोमिना या कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड? हु विल टेल? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड, ओनली भव्या नोज द आंसर्स. यस भव्या. Ma'am, melting. Melting. So this is melting, right? अब इससे B प्रोसेस, लिक्विड टू गैस. हाँ जी प्रेरणा. Evaporation. Evaporation. The process involved is evaporation, a process in which liquid gets converted into gas. ठीक है. Now coming to next उसने किया है यहां से यहां प्रोसेस B. हाँ जी. Anybody else apart from प्रेरणा? कौन सा प्रोसेस है ये in which gas is converted to liquid? Yes, Bani. Ma'am, condensation. Condensation. Condensation is the process involved. Got it? हो गया. चलिए उसके बाद लिक्विड से सॉलिड C, कौन सा प्रोसेस है? किसी बच्चे को नहीं आता आंसर? सिर्फ 3 बच्चों के हाथ खड़े होते हैं, 4 के. निश्चय जोशी. Ma'am, freezing. Freezing. The process involved is freezing. Got it? Clear है? हाँ जी. Coming to next question. Last question. Discuss rainwater harvesting method for the conservation of water with diagram. Diagram आप सबने बनाई होगी. मुझे रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड समझा दो, आपने क्या लिखा है? व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? ओनली प्रेरणा नोज द आंसर. यस सुहाना, आंसर इट. Yes, ma'am. Rainwater harvesting. In this method, the rainwater from roofs or streets is collected and used for recharging underground water and is also used for household activities. राइट. ठीक है. इसके बाद आप डायग्राम बनाओगे. ओके, इज दिस क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस? चलिए लेट अस मूव टू our revision of lesson 12 which was going on. कल हमने करा asexual methods of reproduction शुरू करे थे. इन asexual methods of reproduction हमने क्या करा था? 3 methods हमने करे थे. fragmentation, spore formation and vegetative propagation. ठीक है. उसमें fragmentation हमने करी स्पायरोगायरा में, स्पोर फॉर्मेशन हमने करी फर्न्स एंड मॉसेस. गॉट इट? फिर इन दोनों के बाद हमने फंजाई के ऊपर आ गए हम, थर्ड पर. फंजाई, ये जो फंजाई है इसमें भी 2 मेथड हैं. वन इज बडिंग एंड अदर इज स्पोर फॉर्मेशन. बडिंग हमने करी यीस्ट में और स्पोर फॉर्मेशन हमने करी ब्रेड मोल्ड में. अब हमारा एक और मेथड रहता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का. सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन?
What is the meaning of vegetative propagation? हाँ जी बच्चे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? सबसे पहले टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करते हैं नए प्लांट्स, ठीक है। मींस फ्लावर्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसके अलावा जो पार्ट्स हैं रूट, स्टेम, बड, लीव्स, इनसे ही प्लांट ग्रो कर जाता है। दे आर नोन एज द वेजिटेटिव पार्ट्स। कौन कौन से हैं? रूट, स्टेम, लीव एंड बड। लीफ, बड या लीफ, ठीक है, इनसे ही प्लांट ग्रो कर जाता है। इज दिस क्लियर? इतना क्लियर हो गया? आपकी बुक में बेसिकली इन तीनों की एग्जांपल्स दी हुई है, रूट, स्टेम और लीफ की, ठीक है। तो उसने क्या कहा है, सबसे पहले हम रूट की बात करते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे कि स्वीट पोटैटो, टैमारिंड, स्वीट पोटैटो आप सबको पता है, शकरकंदी, ठीक है, और टैमारिंड इमली, दे ग्रो फ्रॉम द रूट। क्या होता है, ये जो प्लांट है इनकी जो रूट है, ये रूट्स, जिस रूट पे थोड़ी सी बड होती है उसको काट लिया जाता है एंड इट इज ग्रोन इन द सॉइल। आफ्टर सम डेज वी सी न्यू प्लांट ग्रोस फ्रॉम इट। Obviously soil is moist and water is provided to the soil regularly. Then we see new plant grow from the root. This is the example of vegetative propagation by root. Now coming to by stem. Stem से कैसे होती है बच्चे? Stem से होती है, बेस्ट एग्जाम्पल है of potato. अंडरग्राउंड स्टेम है, इन दिस अंडरग्राउंड स्टेम इट इज swollen, swollen है, fleshy है, and it bears buds on it which is called eye. इसके ऊपर eye होती है, it bears a bud which is called eye. If potato is cut, if we cut this potato and plant this part having eye on it into the soil, it will grow into a new potato plant. Is this clear? Is this clear? Apart from this, there is also one example of rose. Rose, ये तो थी अंडरग्राउंड स्टेम, ये अंडरग्राउंड थी ना। अब रोज, दिस स्टेम इज अबव द ग्राउंड। इस स्टेम के भी जिस पार्ट पे बड है उतना पार्ट अगर हम कट कर लें, सपोज दिस इज अ बड, ठीक है, एक्सिलरी बड, अगर हम इतनी स्टेम कट करके इसको ग्रो कर दे सॉइल में, देन इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। दिस मेथड इज नोन एज स्टेम कटिंग। इज दिस क्लियर? This method is known as stem cutting. ठीक है, now coming to leaf. How a leaf can grow into a new plant. Certain plants like bryophyllum, its leaf, ये जो bryophyllum का लीफ है, इसके लीफ के मार्जिन्स पे छोटे छोटे लीफलेट होते हैं। These are the leaflets.
ठीक है, these leaflets they grow on into the new plant. जब ये लीफ प्लांट में से गिर जाता है, when it falls on the moist soil, it grows into a new plant. Got it? Now coming to bud. वैसे तो मैंने आपको बड का बता दिया है, बट स्टिल आपकी बुक में दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा 6th में हमने ये स्टेम की स्ट्रक्चर करी थी। इसमें हमने करी थी एक एक्सिलरी बड, एक हमने करी थी एपिकल बड। एपिकल बड क्या होती है? जो लीफ की ब्रांच और स्टेम इसके बीच में जो एंगल होता है दैट इज एक्सिल। यहाँ पे जो बड होती है, दिस बड इज नोन एज वेजिटेटिव बड। वेजिटेटिव बड, ये जो बड होती है ऑन द नोड, ठीक है, ये जो बड होती है, इस बड को अगर हम ग्रो कर दें, इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है, इस बड के अंदर क्या होता है, व्हाट इज प्रेजेंट इन दिस बड, वेजिटेटिव बड? एक शॉर्ट स्टेम है। क्या होता है इस बड के अंदर? एक छोटी सी स्टेम जिसके अराउंड विच ओवरलैपिंग immature leaves are present, जिसके अराउंड immature leaves ओवरलैप करते हैं। immature leaves are present. Got it? Is this clear students? इतना क्लियर है? ये क्लियर हो गया? अच्छा, ये सारे मेथड जो थे नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थे, ये नेचुरल वेज हैं। देयर आर सर्टेन आर्टिफिशियल मेथड्स आल्सो। आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, कोई आर्टिफिशियल मेथड नहीं दिया हुआ, बट आपको मैंने करवाए थे। जैसे कि फर्स्ट है कटिंग। कटिंग क्या है? जैसे मैंने आपको रोज की एग्जांपल बताई थी। जिस प्लांट में बड है स्टेम के ऊपर, उसका उतना पार्ट स्टेम का काट लो एंड ग्रो इट इनटू अ सॉइल। ठीक है, उसको बोलते हैं कटिंग। देन आ गया नेक्स्ट मेथड, लेयरिंग। लेयरिंग क्या होती है? आपको वैसे सिलेबस में नहीं है, मैं हल्का सा आपको बता देती हूँ। लेयरिंग क्या होती है? कुछ प्लांट्स जिनकी स्टेम के नीचे वाली साइड पे बेस पे ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस को फोल्ड करके नीचे मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। थोड़े दिनों बाद रूट्स निकल आती हैं एंड द प्लांट, न्यू प्लांट, इट ग्रोज। ठीक है, देन आ गया ग्राफ्टिंग। ये बेटा ग्राफ्टिंग आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। इसमें क्या किया जाता है? ग्राफ्टिंग में अलग अलग वेराइटीज इनको ज्वाइन किया जाता है। आर्टिफिशियल होता है। क्या करते हैं ये? एक की स्टेम जो चाहिए उसका एक पार्ट काट लेते हैं, दूसरा जो ऐड करना है उसका पार्ट काट लेते हैं और उन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे उनको सीखते हैं ना, वैसे उसके ऊपर कोई कपड़ा या पॉलीथीन बांध देते हैं ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद एक नई स्पीशीज, नई वेराइटी का प्लांट निकल के आता है। व्हाट इट? इसी तरह टिश्यू कल्चर है, लेबोरेटरी कंडीशंस में प्लांट को ग्रो करवाना, दैट इज टिश्यू कल्चर। दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट मैंने आपको एक जस्ट गो थ्रू कर दिया। ठीक है, नाउ कमिंग टू एडवांटेजेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये आपको आने चाहिए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पहले एडवांटेजेस करते हैं। क्या होते हैं एडवांटेजेस? फर्स्ट एडवांटेज, क्विक मेथड, फटाफट से मल्टीप्लिकेशन होती है। क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग। ठीक है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन होती है। न्यू प्लांट्स आर ग्रोन वेरी फास्ट। और जो प्लांट्स इस तरीके से ग्रो करते हैं, दे नीड
लेस टाइम, उनको कम समय चाहिए टू ग्रो, ठीक है, टू मैच्योर, बियर फ्लावर्स, कम समय चाहिए उनको, एंड दे बियर कंपैरेटिवली मोर फ्लावर्स एंड मोर फ्रूट्स, ठीक है। देन एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो दे आर द एग्जैक्ट कॉपीज, जैसा पेरेंट है वैसा ही बच्चा होगा, ठीक है। तो अगर आपको एक प्लांट, इसकी कुछ क्वालिटीज बड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे इसका फ्रूट मीठा है, उसमें सीड भी नहीं है, उसका कलर भी बड़ा सुंदर है और इसको ज्यादा पानी भी नहीं देना पड़ता, सपोज ये सारी क्वालिटीज एक प्लांट में है, आप उस प्लांट को ग्रो करते हो बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो सारी की सारी क्वालिटीज उस नए प्लांट में आ जाती, ठीक है, इसलिए वो हमें बढ़िया मेथड लगता है, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, तो जिन प्लांट्स के सीड्स नहीं हैं, सीडलेस प्लांट्स, उनको भी हम ग्रो कर सकते हैं बाय दिस मेथड्स। सीडलेस प्लांट्स can also be grown by this method, and plants grown by vegetative propagation need less attention, इनको आपके ध्यान की जरूरत कम पड़ती है, ये अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। एडवांटेजेस में कोई प्रॉब्लम, ये समझ में आ गया। इसके बाद डिसएडवांटेजेस शुरू करेंगे, वही 4 बच्चे सुन रहे हैं क्लास में और कोई नहीं सुन रहा, ठीक है ना, हो गया। आज ये खत्म कर लो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, ओके। कोई डाउट है तो अभी पूछ लो एडवांटेजेस में। इसके बाद लेट अस स्टार्ट डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होती है, मींस नुकसान क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, क्या नुकसान, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहले हमने कहा दे आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। इट मींस अगर पेरेंट को कोई डिजीज है वो बच्चे को भी होगी, ठीक है, वो बेबी प्लांट को भी होगी, तो उसको खत्म नहीं किया जा रहा। Diseases they spread from parents to the young plants, to the offspring या daughter plants, ठीक है, डिजीज स्प्रेड हो गई। नंबर टू पॉइंट है, ये जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स? क्या होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स जिनसे हमने नया प्लांट ग्रो करना है, गॉट इट? जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, जिनसे एक नया प्लांट ग्रो होगा, उनको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। जिस तरह से हम सीड्स को सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड, ये खराब हो जाते हैं। सो ये सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड, राइट? क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स एक ही टाइम पे ग्रो कर जाते हैं विद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सो देयर इज प्रॉब्लम ऑफ ओवरक्राउडिंग। एक जगह पे बहुत रश बढ़ जाता है, ओवरक्राउडिंग इंक्रीजेस, ठीक है। सो देयर इज कंपटीशन फॉर एवरीथिंग, फॉर एयर, वाटर, स्पेस, सनलाइट, हर चीज के लिए कंपटीशन हो जाता है। दूसरी बात, अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस आती हैं तो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स जो हैं, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्लांट्स बने हैं, वो उसको सरवाइव नहीं कर पाते, अडेप्ट नहीं कर पाते। These are the disadvantages.
Now tell me if there are any doubts. चलिए everybody write down advantages and disadvantages of vegetative propagation in your notebooks. लिखिए फटाफट. Start writing everybody. अभी चेक करने हैं, मैंने सुनने हैं. Advantages and disadvantages of vegetative propagation. Hurry up. हाँ जी भावेश, बोलिए बेटा. मैम ये जो आपने मैम इसका डिसएडवांटेज मैम जो आपने पीछे लिखा है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स मैम वो वाला एक और बार रिपीट कर दो. Vegetative propagules क्या होते हैं? यस मैम. वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स जिनसे नया प्लांट ग्रो करना है. ठीक है, तो जैसे हम सीड को स्टोर करके रख सकते हैं सालों साल, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स स्टोर नहीं होते, वो खराब हो जाते हैं. ओके. ठीक है, चलिए राइट डाउन एवरीबॉडी, स्टार्ट राइटिंग. सारे बच्चे लिखना शुरू करो. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इन द कॉपीज. Start writing everybody. लिखिए बेटा फटाफट लिखिए, डोंट वेस्ट टाइम. लिख के उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन के डायग्राम्स बनाइए. हरी अप. हरी अप एवरीबॉडी.